Hello, Neha. Welcome to the podcast. Thank you for coming. Investors are busy in various businesses, but founder is busy in one business because investor का main agenda is to invest money and generate good returns. Eventually होता क्या है, एक दिन एक founder phone करता है और वो बोलता है मैं तो बंद हो रहा हूँ. सब फट गया. But as founder, आपका time, आपकी energy, आपका blood, sweat, family सब invested है इसके अंदर. क्या हमारे male members उनकी वो ट्रेनिंग हो रही है कि उन्हें ये समझ में आए हाउ टू लिव विद अ सक्सेसफुल वुमेन. उस लड़की ने काम किया है, वो सक्सेसफुल थी, वो डॉक्टर थी, वो मेहनत कर रही थी, वो अपना काम कर रही थी, राइट. बट ऐसा क्या उसने गलत किया कि शी हैड टू लूज हर. Hello, Neha. Welcome to the podcast. Thank you for coming. Thank you for calling me here. How are you? I am blessed. How are you? I'm also doing good. Thanks. Can you please introduce yourself for the viewers? Yeah, so hi everyone, I'm Neha Lakfara. I am a founding partner at AKCT Ventures right now. And if I tell you about my previous organization, so I was part of Agility Ventures. Before that, I was part of a law firm, and I'm a CS and a lawyer. That's how I started my career. But Neha, जब हम बात कर रहे थे कॉल पे, you mentioned that you were a PCM student. Yes. So let's talk from there only. You were a PCM student and then you entered into the accounts space and then this investment space. How did it all start? वहाँ से यहाँ तक. So I think I've been blessed with the great opportunities always. So I was a PCM student. In 11th, 12th, I had this craze in mind to be an engineer because, at that point in time, engineering was something everybody was doing. And I was like, I want to be an engineer. So I started and I was always good at studies because of my mom. She was very particular that, you have to study. So I started with PCM. Prepared for engineering exams also, got opportunities as well, gave full of pressure wale papers also, like, AI, EEE, JEE and all. But eventually got admission in Bharati Vidyapeeth Pune. So I was getting opportunity to get admitted there. But parents were like, because so I'm the eldest kid. Okay. And very pampered. So parents were like, see, if you can't go, you can stay here, do some courses, etc. I spoke to one person in my neighborhood and he told me that, there's no harm to switch careers as well. There's no harm to switch your stream as well. Because I had that, confusion in my mind. How will I go without science and everything? So he made me realize that there is no harm. If you're enjoying what you're doing, please do change. So that's how I started looking for other courses. I was very sure that I want to do a professional course only. So I started with BCom honors from DU, SOL actually. And then, SOL is not full-time, right? Yes. So I was looking for something full-time. Then I started company secretary course. And that's how my stream got changed, career got changed. And there, I prepared for exams, I gave exams, and eventually became a company secretary with a lot of hard work. And then I got my first job with the campus placement from ICSI itself, with a law firm. That's a firm in NSP itself. Before my first job, because in CS it is mandatory to have your trainings as well, right? So I did training in two places. So one was a law firm and second one was a CS firm. Then I passed the CS and got my first job. There I started actually, getting interest in law. So when I was a CS, I was getting interest in law. And there my mentor was very humble and kind and he gave me opportunity to learn law. And then I became, I gave LLB exams also and I became a lawyer also. Okay. And then when I was with that law firm, I was doing various cases as well with respect to NCLT, especially because corporate law is in my blood, being a company secretary. So I was taking care of the IBC division there. It was, I think, more than 3.5, 4 years I was with that law firm. Then I thought, let's do something else. Then I got opportunity at Agility Ventures.
as a legal person, as the fifth founding member of Agility. And because my background was of legal, so I was expected to do the legal work. I joined Agility when Agility was a network. Agility was June 2020 born, and I joined them in March 21. Okay. So I was the fifth founding member, and then we discussed, and Prashant sir, Dhanu sir told that we want to establish a fund. So learned that, got the opportunity with right mentors, with right skills, and with right hard work. Then Prashant sir supported me, guided me, helped me, and with the consultants, we established Agility Ventures Fund. So I was there for a long time. I was there till May this year, actually. June this year. I'm sorry, June this year, yeah. And took various roles, from legal to then I was in Dubai for almost an year or so. And I was taking care of Dubai chapter. Okay. To and fro was happening almost, to India as well. So I was taking care of operations there, and I had one colleague with me. So we were just two people there, and we were handling things, learning. Then moved back, took the position of AVP investments, took care of some investment sides, and then realized that it has to be in sync. So took care of the process, and kept learning, and been blessed with a great mentor. So they used to teach me on everything. Actually, I used to ask silly questions also, and they were very kind to answer all those questions as well. And then on 1st July, I joined this AKCJ Ventures. So AKCJ is a group which is vision of our managing partner, Mr. Amit KC Jain. Yes. That's the actually full name of AKCJ as well. So we have 3 departments here. One is the ventures, which I am part of. Second one is the listed, wherein we are we are still we started this listed in August, actually. So July venture started, August this one started, and there we are looking to establish a PMS. That's a separate team headed by Amit ji himself, because he has been a practicing CA as well. He has a corporate experience as well. So, and the third division is the wealth advisory, which probably will be starting very soon. So it's the journey I had in my professional career. Vast experience. Let's break it down. अगर आप आज इस फील्ड में नहीं होती, what were you be doing? Okay. Because you have multiple hats you've worn. Yeah. So I don't know, probably legal, because Okay. वहीं पर थी मैं. So और मैं enjoy कर रही थी legal को. So I think अगर मैं इस field में नहीं होती तो मैं legal में ही कुछ कर रही होती. Probably insolvency, bankruptcy, probably deal making, and collaborations, corporate collaborations, mergers, acquisitions, something of that sort. Okay. आज आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज AKCJ वेंचर्स में क्या हैं? आपका एक दिन, देन एक वीक एंड देन एक मंथ कैसे गुजरता है? So honestly, abhi at AKCJ Ventures, I am learning. Okay. It's a new organization with new people. So abhi ये ऐसा होता है कि दिन, हफ्ता, महीना, अभी क्योंकि 2.5 महीने ही हुए हैं, right? So वो अभी बन रहा है routine. But yes, few things are very clear that with the right kind of mentorship from Amit ji and my other partner Anjeet, because she has been a corporate coach. She has been a person who has done 0 to 1 for many entrepreneurs, so she knows how to scale. Okay. So with their support and with their learnings, and obviously the skill set I bring to the table, we 3 are trying to create AKCJ Ventures, a fund, very soon. एंड सो आई थिंक दिन तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि सुबह उठो और ऑफिस चले जाओ, शाम को जाओ और घर जाके सो जाओ. सो आई थिंक बिकॉज आई लिव विद माई पेरेंट्स, सो आई एम ब्लेस्ड, आई हैव नो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड आई एम एंजॉइंग. यूजुअली हफ्ते में ये होता है कि मंडे टू फ्राइडे माई ऑल टाइम इज विद ऑफिस. Meeting new founders, discussing new strategies, and evaluating startups. And Saturdays I prefer to be on events. I prefer to interact with a couple of startups. So that's usually my week look likes, and eventually my month look likes. Got it. अपने past
2-3 मंथ्स के टाइम में आप जिन भी फाउंडर्स से मिले, कुछ ऐसे फाउंडर्स जो आपको काफ़ी अच्छे लगे एंड उनमें क्या पसंद आया, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट इट? आई थिंक फाउंडर्स में जो सबसे मेन चीज़ दिखती है, मतलब वो ये होती है द कन्विक्शन। क्योंकि आप किसी भी फाउंडर से मिलो, किसी भी फाउंडर से, वो अपने प्रोडक्ट को लेकर, अपने कंपनी को लेकर, अपने स्टार्टअप को लेकर फुल्ली कन्विक्टेड होता है। उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, वो उसकी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग होती है। एंड आई थिंक वो स्ट्रांग कन्विक्शन ही हमें वो कॉन्फिडेंस देती है कि हमें उस स्टार्टअप को आगे समझना है, because the kind of confidence they show on themselves makes us realize that something is there and we are missing on that. So वो almost हर founder में मुझे दिखता है. I've met couple of founders, not just in last couple of months, but actually before that also, right? And honestly, I've met founders in India, I've met founders abroad as well. So I think every founder who is actually putting his sweat and blood in a company, he's very sure that whatever he's doing is something important. Opinions can be there. We can have a different opinion. We might feel that this is not gonna work. We might feel that this is way ahead of time, but that's our personal opinions, because founders are actually putting their lives on stake. And since trends have changed, more mature founders are entering into this space, and more mature founders are leaving their high paying corporate jobs. सो आई थिंक वहाँ पर जो कॉन्फिडेंस होता है एक ऐसे फाउंडर पे जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिसके ऊपर अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, फिर भी वो इतना बड़ा रिस्क ले रहा है और वो अपनी लाइफ की जितनी सेविंग्स हैं उनको अपनी कंपनी को बनाने में लगा रहा है. आई थिंक दैट्स अ काइंड ऑफ कमिटमेंट I really feel, gives us confidence. Correct. Yeah. And you have also mentioned in your LinkedIn, I think there is a cover, transforming challenges into opportunities. Let's break it down. Why you've mentioned that? See, मैं मानती हूँ कि everybody is facing challenges every day, every minute, right? और सबके challenges different हैं. एक्चुअली ये कुछ महीने पहले शायद मेरा ऐसा इतना ज़्यादा मानना नहीं था, बिकॉज हमें इंस्टाग्राम लाइव्स दिखती है ना सबकी, तो शायद मेरा इतना ज़्यादा मानना नहीं था. बट देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, राइट, एंड ही कीप्स ऑन सेइंग दिस कि भाई सिर्फ तेरे साथ प्रॉब्लम्स नहीं है, सबके साथ है, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग. और मैं ना बस सुन रही थी एंड आई वाज गेटिंग इरिटेटेड कि यार सबके साथ है तो मैं क्या करूं, मेरे साथ नहीं होनी चाहिए. बट धीरे धीरे उसने इतना बोला कि मुझे अब लगने लगा कि सबकॉन्शियसली आपका दिमाग काम कर रहा होता है, राइट? और सबकॉन्शियसली आपको पता होता है कि वो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ एनालिसिस चल रही है. बट अब जब मैं लोगों को देखती हूँ ना, और अब जब मैं लोगों को मिलती हूँ, तो आई प्रेफर टू टॉक टू देम एंड अंडरस्टैंड देयर स्टोरी, कि उन्होंने ये चीज़ क्यों करी एंड व्हाट मेड देम डू दिस, व्हाट चैलेंजेस दे फेस. और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि everybody is actually turning their challenges into opportunities. Because not just me, everyone, right? We talk about any successful person. ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी की लाइफ एकदम स्मूथ चली हो. The top notch people we look as role models, उनके लाइफ में भी बहुत चैलेंजेस थे. एंड थोड़ा सा ज्ञान लग सकता है, बट मुझे एक वीडियो दिखी थी जया किशोरी जी की, राइट, व्हेन आई वाज स्क्रॉलिंग. सो उन्होंने बोला कि यहाँ पर आकर तो भगवान को भी चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, तो हम तो सिर्फ इंसान हैं. एंड शी वाज गिविंग एग्जांपल ऑफ श्री राम जी, राइट. सो आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज़ पे एनर्जी डालते हो, किसी चीज़ पे फोकस करते हो ना, तो आपको आसपास की चीज़ें वैसी नज़र आने लगती हैं. तो शायद मैं इस थॉट को समझने की कोशिश कर रही थी कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट किया जाए. एंड देन व्हेन आई जॉइंड डॉट्स बैकवर्ड्स मेरी लाइफ के भी, तो देन आई रियलाइज्ड कि ओके, मेरे साथ भी तो चैलेंजेस ही थे. मैं इंजीनियरिंग के लिए पुणे नहीं गई, तो मैंने उस चैलेंज को कन्वर्ट किया अपॉर्चुनिटी में. एंड आई थिंक that was the best decision of my life. I really feel today. उस टाइम पे I was crying, I was doing all that, kid वाला चीज़ कि मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, ये है वो है. But
आई थिंक दैट्स द बेस्ट डिसीजन मेरे प्रोफेशनल करियर को शेप करने के लिए. बिकॉज अगर मैं वहाँ चली गई होती, शायद मैं एक मीडियोकर इंजीनियर बनती, शायद मैं सक्सेसफुल नहीं होती, शायद मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती. बट आज जो मैं कर रही हूँ, जो मैंने किया है CS बनने के बाद, जो मेरे को इन्जॉयमेंट मिली है और मुझे काम कभी इस तरीके से बर्डन नहीं लगा है, तो आई थिंक कुछ डिसीजंस आपकी लाइफ में जो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, वो अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आपको लगेगा कि सही हुआ है. सो बस वही है, टर्निंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज. थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग एंड आई थिंक मैं इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ नेहा, क्योंकि मैंने आपको ऑफलाइन इवेंट में सुना था एंड ऑल ऑफ योर आंसर्स वर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ट्रू. आई थिंक आपने आंसर्स इसमें भी दिए कि एक टेक को फाउंडर अगर नहीं है और आप एक टेक बिजनेस रन कर रहे हैं, हाउ इज़ इट द केस व्हेन यू टॉक्ड अबाउट कि यार किस अपने बेबी को किसी और को ग्रो करने थोड़ी ना दोगे, खुद ही ग्रो करोगे ना. Absolutely. तो आई थिंक मेरे को ये आपकी बातें रिलेटेबल और सेंस बना रही हैं, क्योंकि मैंने आपको इवेंट में वो सारी चीज़ों को बताते हुए ही सुना है जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे हैं. एंड दैट्स वाई यू आर सेइंग दैट ट्रांसफॉर्मिंग चैलेंजेस इनटू अपॉर्चुनिटीज़. हम लोग इस एरिया में और डीप डाइव करेंगे, फाउंडर्स एरिया में, इन्वेस्टमेंट एरिया में, बिकॉज आपका बैकग्राउंड वही है. एंड बहुत सारे कंसेप्शंस, मिसकंसेप्शंस फाउंडर्स के माइंड में रहते हैं इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टर्स को लेके. इन्वेस्टर ऐसा होता है, वैसा होता है, हमें ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए, वैसा प्रेजेंट करना चाहिए. बट आप मेरे को एक ऐसी पर्सनैलिटी लगे जो एकदम रॉ ऑथेंटिक आंसर्स भी दे रहे हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन भी फाउंडर से काफ़ी क्लियर है, जो मेरे को काफ़ी कम देखने मिला है अपने एक्सपीरियंस में टिल डेट तक. तो उसको थोड़ा हम ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि वो एडुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी किसी भी फाउंडर के लिए. उसमें स्टार्ट करने के लिए पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि फाउंडर और इन्वेस्टर के बीच में एक मॉनिटरी रिलेशन, सबसे पहले एक मॉनिटरी रिलेशन होता है जो इस्टेब्लिश होता है. फाउंडर को मनी की ज़रूरत है, इन्वेस्टर ने पैसा लगाया बिकॉज वो आउटपुट देख रहे हैं. लेकिन इन्वेस्टर्स ब्रिंग अ लॉट मोर अदर थिंग्स देन मनी. आई वॉन्ट यू टू ब्रेक इट डाउन कि फाउंडर अगर इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं तो मनी के साथ साथ उन्हें इन्वेस्टर्स के अंदर क्या देखना चाहिए. ओके, सो यस, एक मनी एंगल एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज स्टार्टअप फाउंडर्स जो होते हैं उनको रैपिड ग्रो करना होता है, उसके लिए उन्हें पैसा चाहिए, दैट्स अ फैक्ट. बट मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एज अ फाउंडर आप जिस भी इन्वेस्टर को अप्रोच कर रहे हो फॉर मनी ऑल्सो, प्लीज नो देम, because you have to know your customer, and investor is also your customer, your team is also your customer, your customer is actually your customer, right? But हम शायद investor को, team को और बाकी चीज़ों को, कंसल्टेंट्स को अपना कस्टमर नहीं मानते. अगर हम उन्हें भी अपना कस्टमर मांगेंगे तो हम उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे. एज अ फाउंडर आपकी डिसअपॉइंटमेंट बढ़ जाती है जब आप बहुत जगह पर अपना पिच डेक भेजते हो और आपको रिस्पॉन्स नहीं आता, करेक्ट, या फिर आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, राइट? हम्म, सो वो क्यों आता है? क्या आपने एक्चुअली सही इन्वेस्टर को अप्रोच किया है? क्या आपने अपने इन्वेस्टर के बारे में रिसर्च करी है? क्या आप जानते हो कि वो किस स्टेज पे कितने पैसे लगाते हैं? क्या उनकी पोर्टफोलियो कंपनी है? क्या आप अपना पिच डेक भेजते हुए उनकी पोर्टफोलियोज को स्टडी करके बता रहे हो उन्हें कि इफ आई बिकम योर पोर्टफोलियो कंपनी तो मैं इस कंपनी के साथ भी कोलैबोरेट कर सकता हूँ. इन्वेस्टर्स आर बिजी इन वेरियस बिजनेसेस, राइट? बट फाउंडर इज बिजी इन वन बिजनेस. सो अपने बिजनेस के बारे में आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता एज अ फाउंडर. सो आई ऑलवेज से टू फाउंडर्स कि आप अपने बिजनेस के एक्सपर्ट्स हो, राइट? आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए ना वो आपको मांगनी पड़ेंगी, आपको बताना पड़ेगा. बिकॉज एज एन इन्वेस्टर मैं आपके बिजनेस को उतना डीप नहीं समझ पाऊंगी जितना आप उस बिजनेस को समझ पा रहे हो. प्रॉबेबली अगर मैं आपके साथ बैठूंगी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैं कुछ बेसिक चीज़ समझ पाऊंगी, बट फिर भी मेरे साथ कपल ऑफ बिजनेसेस और हैं, राइट? सो एज एन इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टर है ना, उसको आप बोलोगे ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए. ऑनेस्टली आई फील कि आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, asking the right advice and asking the right thing gives you the right solutions.
सो आप रिसर्च करो अपने इन्वेस्टर्स के बारे में हम्म कि मैं किस स्टेज पर हूँ, मुझे कितना अमाउंट रेस करना है. रिसर्च ऑन द इंटरनेट कि कौन सा ऐसा इन्वेस्टर है जो इस स्टेज पर इस तरीके की कंपनीज में डाल रहा है. अगर सपोज एक इन्वेस्टर ने रिसेंटली आपकी ही कंपेटिटर कंपनी में पैसा डाला है और मे बी आपकी ही इंडस्ट्री में 2-3 कंपनीज में पैसा डाल रहा है, तो आप उस एंगल से भी तो सोचो कि उस इन्वेस्टर का भी एक फंड कॉर्पस है. उस सेक्टर के लिए उनका एक मिनिमम कॉर्पस होगा, एक मैक्सिमम कॉर्पस होगा. अभी अगर रिसेंटली उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंपनी में, सपोज किसी ने हेल्थ टेक में ही रिसेंटली 2-3 इन्वेस्टमेंट्स करी हैं और आप भी हेल्थ टेक बना रहे हो, सो क्या इस टाइम पे आपका उनको अप्रोच करना सही होगा? बिकॉज नाउ दे विल बी लुकिंग फॉर अदर सेक्टर्स. करेक्ट. तो अगर किसी ने हेल्थ टेक में किया और आप फिनटेक में हो, तो आप ये तो जान लोगे ना कि वो कौन सी स्टेज पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. देन स्पीक टू देयर पोर्टफोलियो कंपनीज जिन्होंने उनसे ऑलरेडी पैसा रेस कर लिया है. आप उनसे बात करो. आजकल फाउंडर्स को रीच आउट करना मुश्किल नहीं है. आप इवेंट्स पर जाओ, आप लिंक्डइन पर जाओ, आप किसी को भी मैसेज करोगे. एवरी पर्सन इज वर्किंग इन कोलैबोरेशन. यस. एवरी फाउंडर अंडरस्टैंड्स द पेन ऑफ अदर फाउंडर स्पेशली, राइट? यस. हम कहते हैं कि कि जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को उसका दर्द फील होता है. फाउंडर्स तो रोज वही फेस कर रहे हैं. तो अगर आप अपनी एक प्रॉब्लम लेके किसी फाउंडर के पास जाओगे और उसे बोलोगे कि आपने इस पर्टिकुलर इन्वेस्टर से रेस किया था, इनकी प्रोसेस क्या है, आपको पहले ही पता है. हो सकता है किसी इन्वेस्टर की प्रोसेस 6 मंथ्स की हो, किसी इन्वेस्टर की प्रोसेस 3 मंथ्स की हो. तो आपको पता है कि मैं 6 मंथ्स वेट करने के लिए रेडी हूँ, क्या मैं 3 मंथ्स वेट करने के लिए रेडी हूँ एक्चुअल डिप्लॉयमेंट के लिए. आई एम नॉट सेइंग कि वो आपको रिस्पॉन्स 3 महीने या 6 महीने में करेंगे, बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स रिस्पॉन्स वेरी क्विकली, बिकॉज वो भी समझते हैं कि उनका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, तो फाउंडर का टाइम भी इंपॉर्टेंट है, राइट? बट डिप्लॉयमेंट में टाइम लगता है, बिकॉज ड्यू डिलिजेंस होता है और सारी चीज़ें होती हैं, पेपर वर्क होता है, एक सेट प्रोसेस होता है, तो वो टाइम लेता है. तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपकी जो टर्न अराउंड की एक्सपेक्टेशन है, क्या उस इन्वेस्टर से मीट होगी. अगर नहीं होगी तो आप उनका भी टाइम खराब करोगे और आप अपना भी करोगे. तो पहले रिसर्च करके जाओ. आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हो, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हो, आप अपने इन्वेस्टर के बारे में भी रिसर्च करो. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक दिस इज द मेन लर्निंग एवरी फाउंडर शुड नो बिफोर गोइंग टू एनी इन्वेस्टर. करेक्ट. हमने नेहा ये भी काफ़ी बार हमें सुनने में आता है कि आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है, आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल है. तो कैसे बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं होते, उन फाउंडर्स को क्या करना चाहिए? मतलब हमने तो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फॉर एग्जांपल सर्विस बिजनेस. आज हमारे वीडियो प्रोडक्शन एजेंसी है. आई डोंट थिंक इट इज़ एन इन्वेस्टेबल बिजनेस, क्योंकि हम लोग सर्विसेज दे रहे हैं क्लाइंट्स को, और ये मेरे को क्लियर है अभी. तो आई एम नॉट लुकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, लेट्स से. बट लेट्स से अगर कोई फाउंडर इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहा है और उसका बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं है, व्हाट आर द साइंस टू अंडरस्टैंड दैट आवर बिजनेस इज नॉट इन्वेस्टेबल एंड वी शुड गो फॉर अ बूटस्ट्रैप मोड रेदर देन सीकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट? बिकॉज अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो आप अपना टाइम वहाँ पे लगा रहे हो और आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो. इससे बेटर आपको अपने बिजनेस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. तो कैन यू ब्रेक दिस डाउन? व्हाट आर इन्वेस्टेबल बिजनेसेस, व्हाट आर नॉन इन्वेस्टेबल बिजनेसेस? इसके लिए मेन समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ अ स्टार्टअप, राइट? क्योंकि हम एक स्टार्टअप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं. सो यूजुअली ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है जो नॉन इन्वेस्टेबल जिनको मिलता होगा वो शायद स्टार्टअप्स नहीं होंगे. ओके. राइट? वो SMEs हो सकते हैं. दे आर डूइंग अ ट्रेडिशनल बिजनेस, मे बी प्रॉफिटेबल, मे नॉट बी प्रॉफिटेबल, राइट? बट दे आर डूइंग अ ट्रेडिशनल बिजनेस. तो स्टार्टअप की मेन डेफिनेशन ही है कि आप या तो कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, नया सोल्यूशन दे रहे हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग मार्केट को डिसरप्ट कर रहे हो. दीज आर द 2 थिंग्स जो मुझे लगता है एक स्टार्टअप की डेफिनेशन होती है, राइट? कि आप या तो कुछ नया इनोवेटिव बना रहे हो, वो टेक से भी हो सकता है, वो नॉन टेक से भी हो सकता है, या फिर आप कुछ एग्जिस्टिंग में ही इस तरीके का पिवट कर रहे हो, इनोवेशन कर रहे हो, जिसकी वजह से आप उस मार्केट को डिसरप्ट करने की क्षमता रखते हो. ओके. राइट? सो जहाँ पर ये 2 बिजनेसेस, 2 चीज़ों की बात आती है,
आई थिंक दीज आर इन्वेस्टेबल बिजनेस. ऑब्वियसली उसके और भी रीजंस हैं. इट्स नॉट कि आप इस डेफिनेशन में फॉल कर गए. तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका बिजनेस इन्वेस्टेबल नहीं हो सकता. हो सकता है कि आप जो सोल्यूशन दे रहे हो वो अभी आज की ऑडियंस उस सोल्यूशन के लिए रेडी नहीं है. दैट कैन ऑल्सो बी अ probability, right? So I think हो सकता है आपकी टीम उसके अंदर वो कोर स्ट्रेंथ ही नहीं है जो आपके बिजनेस की कोर स्ट्रेंथ है. तो आप कैसे उसको बड़ा करोगे? हो सकता है कि स्केलेबिलिटी इशू बहुत ज़्यादा हो सकता है कि केपेक्स बहुत ज़्यादा चाहिए हो, राइट? तो जहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा है वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है? ग्रोथ रैपिड नहीं हो पाती. सो एज एन इन्वेस्टर आप देखते हो कि किस स्टार्टअप की ग्रोथ जल्दी हो सकती है. बिकॉज इन्वेस्टर का मेन एजेंडा इज टू इन्वेस्ट मनी एंड जनरेट गुड रिटर्न्स. एंड इन्वेस्टर की पोजीशन भी समझनी बहुत ज़रूरी है. इन्वेस्टर जो है वो वो भी किसी और का पैसा मैनेज कर रहे हैं एज अ फंड, राइट? उनके ऊपर ही एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टर को आपको मना करने में मज़ा नहीं आ रहा है, बट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू टेक गुड डिसीजंस. Actually, I'll not say कि good decisions, but to take a decision well informed. Because good और bad तो obviously वो बाद में निकलेगा. तो I think वो एक समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी इन्वेस्टर ने अगर आपको मना किया है तो उसका कुछ रीज़न है, राइट? और आई थिंक एज अ फाउंडर आपको पूछना चाहिए. इफ़ यू आर अप्रोचिंग समवन और आपने उनके बारे में रिसर्च करी है और आपको लगता है कि दिस इज़ द राइट इन्वेस्टर और उन्होंने मना किया है, तो आप उनसे एक बार पूछिए, उनकी टीम से पूछिए. कई बार ऐसा हो सकता है कि वो राइटिंग में आपको नहीं बता पाएँ, बिकॉज वी ऑल्सो फील एंड वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एनीथिंग विच कैन अफेक्ट फाउंडर्स और स्टार्टअप्स रेप्यूटेशन. हो सकता है हमें कोई ऐसा पॉइंट लगे जो रेड फ्लैग है, हमारे लिए हो सकता है, वो दूसरों के लिए नहीं हो सकता. बट अगर हम उस रेड फ्लैग को सोशल मीडिया पे डाल दें तो वो फाउंडर के लिए आगे फंड रेज करना मुश्किल हो जाएगा ना, उन लोगों से भी जिनके लिए वो रेड फ्लैग नहीं है. सो टू सेफगार्ड दैट आपको एज अ फाउंडर अपने इन्वेस्टर से बात करनी चाहिए एंड उनसे पूछना चाहिए कि इफ़ माई बिजनेस इज़ नॉट इन्वेस्टेबल, सो व्हाट आर द फैक्टर्स जिसके बेसिस पे आपको ऐसा लगा. एंड सेकेंड इज, हो सकता है उनकी एडवाइस आपके लिए आगे काम आ जाए और एक्चुअली वो पिवट आप कर सको. तो बी ओपन फॉर फीडबैक, बी ओपन टू पिवट थिंग्स, राइट? सो एज वी डिस्कस्ड, मैंने अपना करियर पिवट किया है तो प्रोडक्ट भी तो पिवट हो सकता है, सर्विसेज भी तो पिवट हो सकती है, स्टार्टअप भी तो पिवट हो सकता है. करेक्ट. नेहा, जब इन्वेस्टर्स आर ऑन द टेबल और बिफोर दिस फाउंडर वाज बूटस्ट्रैपिंग, छोटी टीम है, अपने आप सारे काम कर रहे थे, इन्वेस्टर्स कौन से एरिया में फोकस करते हैं फाउंडर्स के साथ मिलके? ऑफ कोर्स वन पार्ट इज एज वी डिस्कस्ड मनी, उससे उनको इंडिपेंडेंस मिल रहा है कि हाँ ये काम वो अब कर सकते हैं, फ्रीडम मिल रहा है. बट फाउंडर के साथ इन्वेस्टर मिलके क्या किसी एरियाज पे फोकस करते हैं जिससे कि बिजनेस में करेक्शंस हो जाएं जो अभी तक नहीं थे, और अगर वैसे एरियाज में करते हैं तो कौन से ऐसे एरियाज होते हैं? बहुत सारे, राइट? सो फाउंडर्स को मेंटोर्स की ज़रूरत पड़ती है एंड फाउंडर शुड बी ओपन टू हैव मेंटोर्स. बस ये डिसीजन लेना ज़रूरी होता है कि आपको किस स्टेज पर कैसा मेंटोर चाहिए और आप उनको कितना स्टेक दे रहे हो. बिकॉज अगर आप ज़्यादा डाइल्यूट हो गए तो आपके फर्दर राउंड्स में भी प्रॉब्लम आती है. सो एज इन्वेस्टर्स हम लोग फाउंडर्स पे, क्योंकि वी आर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स, हम फाउंडर पे ज़्यादा बेट करते हैं. हम फाउंडर के ट्रेड्स को ज़्यादा देखते हैं, हम फाउंडर को समझना चाहते हैं. Okay. हमारे कुछ की फैक्टर्स जो होते हैं वो फाउंडर को एनालाइज करने पर होते हैं, उनकी टीम को एनालाइज करने पर होते हैं. एंड कई बार तो टीम होती ही नहीं है, एज यू सेड. तो उस टाइम पे फाउंडर कितना स्ट्रॉन्ग है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो कहाँ से आया है, वो क्या कर रहा है, वो क्या करना चाहता है. बिकॉज जब अर्ली स्टेज में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इफ़ थिंग्स गो रॉन्ग, एंड जो कि जाएंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे. तो वी वांट टू नो कि उस टाइम पर क्या फाउंडर इतना केपेबल है कि वो संभाल पाएगा. Because we are actually trusting the founder with the hard-earned money of our investors.
and they have trusted us, we are trusting the founder. It's a chain. करेक्ट. So वो founder को भी वो confidence दिलाना जरूरी है कि मैं तो यही हूँ, कुछ सही हो गलत हो मैं यही हूँ, मुझे इसे चलाना है. और चलाने के लिए बिकॉज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरीके से AI बढ़ रहा है, जिस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं और ऑडियंस डिफरेंट हो रही है. आज हम मिलेनियल्स से जेनजीज की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जेन अल्फा की बात हो रही है. तो सबकी नीड्स डिफरेंट है, सबकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट है, एंड इवेंचुअली आपको अपनी ऑडियंस के हिसाब से, अपने कस्टमर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को पिवट करना पड़ेगा. सो अगर फाउंडर अपने आइडिया से इतना ज़्यादा प्यार में है, बिकॉज कन्विक्शन, जैसे मैंने बोला कन्विक्शन ज़रूरी है, बट प्यार अंधा तो इवेंचुअली आपको हार्म ही करेगा. करेक्ट. मैं ये बहुत अच्छा पॉइंट है. बैक इन द टाइम आई वाज डूइंग समथिंग और हम लोग पैसे जनरेट नहीं कर रहे थे, हम लोग बस काम कर रहे थे, बस हेल्प कर रहे थे. और मेरे को लग रहा था हम स्टार्टअप कर रहे हैं. तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था एक इन्वेस्टर कम फ्रेंड के साथ, और मैंने कहा यार हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो मैंने कहा आप इन्वेस्ट करोगे? तो उन्होंने कहा कि दिव्यांश ये बिजनेस नहीं है, ये समाज सेवा है, एंड समाज सेवा एंड बिजनेसेस आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो आई थिंक वो भी पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स है फाउंडर के लिए, कि आप राइट चीज़ कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो. नेहा, हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं, लेट्स से किसी को हायर करने के लिए अपनी कंपनी में, तो हम कुछ पर्सनैलिटी ट्रेट्स चेक करते हैं अपार्ट फ्रॉम द कोर स्किल्स. एक वीडियोग्राफर है, उसे मुझे हायर करना है, तो कोर स्किल वीडियोग्राफी इज सुपर मैंडेटरी, उसके बिना तो मैं करूँगा ही नहीं. बट उसके साथ साथ कुछ पेरिफेरल ट्रेट्स हैं जो उसके अंदर होने चाहिए, तभी मैं उसको हायर करूँगा अपनी कंपनी में, वरना वो कितना भी अच्छा वीडियोग्राफर हो मैं हायर नहीं करूँगा. सिमिलरली इन्वेस्टर जब फाउंडर से मिल रहा है, तो देयर आर सम ट्रेट्स विच दे आर लुकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. व्हाट आर सम ग्रीन फ्लैग ट्रेट्स एंड देन व्हाट आर सम रेड फ्लैग ट्रेट्स जिनको आप देख के कहते हो, बाद में आप मे बी डिस्कस करते होंगे अपने टीम के साथ, अपने बोर्ड के साथ, कि यार बिजनेस अच्छा बना रहा है बट ट्रेट अच्छा नहीं है. तो वो कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं, वो दो सीक्रेट्स, लेट्स रिवील देम. ओके, सो आई थिंक इसको ना मैं थोड़ा सा कनेक्ट करती हूँ पर्सनल लाइफ से. ठीक है. राइट, बिकॉज फाउंडर और इन्वेस्टर का रिलेशनशिप जो होता है वो भी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है, जैसे कि हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का. सो आप जब अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ चूज़ करते हो, राइट, तो आप देखते हो कि वो आपको पसंद आ रही है, आपको देखने में अच्छी लग रही है एंड ऑल दैट, राइट. बट नेचर बाद में ही पता चलता है. और क्या ऐसा होगा कि नेचर मैच नहीं करे और आप उनके साथ कंटिन्यू कर पाओ बिकॉज वो दिखते अच्छे हैं? नहीं हो पाएगा ना. एग्जैक्टली. तो फाउंडर हमारे लिए एक ऐसा पर्सन है, हम जिसके बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 100%, वो हमसे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है उस बिजनेस के लिए. बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू हैंड होल्ड देम, सपोर्ट देम एंड हेल्प देम ग्रो, बिकॉज हमने ट्रस्ट किया है, ग्रोथ के लिए किया है. तो ऐसे ही फाउंडर्स के अगर हम ट्रेट्स की बात करें, सो वन ट्रेट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फाउंडर इज़ क्या वो एक्चुअली फीडबैक के लिए ओपन है. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि फाउंडर्स अपने आइडिया पे इतने स्ट्रांग होते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च, विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्री, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट स्टडी, विद रिस्पेक्ट टू इनोवेशन. वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि उन्हें लगता है कि सामने वाला कुछ नहीं जानता, बट वो ये भूल जाते हैं कि सामने वाला ही आपका कस्टमर है. तो आपको कस्टमर फीडबैक अगर एक इन्वेस्टर से मिल रहा है तो आपको लेना चाहिए. Definitely. और अगर आप इन्वेस्टर का नहीं ले रहे हो, जिसके पास आप पैसे लेने आ रहे हो, तो आप कस्टमर्स का तो लोगे ही नहीं. और इवेंचुअली अगर आप कस्टमर फीडबैक नहीं लोगे तो यू वोंट बी एबल टू स्केल. बिकॉज किसी भी बिजनेस की सक्सेस जो होती है वो रिपीट कस्टमर्स पे होती है. आप सिंगल कस्टमर्स कितनी बार एक्वायर करोगे, राइट? आपके रिपीट कस्टमर्स, आपकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, वो जो है वो दिखाती है कि आप कितना स्ट्रांग हो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ स्टार्टअप. तो जब भी हम फाउंडर से मिलते हैं, सबसे पहले ये होता है कि फाउंडर फीडबैक के लिए कितना ओपन है. सेकेंड इज फाउंडिंग टीम. फाउंडिंग टीम में किस तरीके की ट्यूनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इफ यू सी
सर्टेन रिकॉर्ड्स, सर्टेन रिपोर्ट्स, सो आपको समझ में आएगा कि फाउंडिंग टीम या फाउंडर्स के बीच के डिस्प्यूट्स ने कंपनीज को, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज को किल किया है. डेफिनेटली. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि फाउंडर्स की आपस में ट्यूनिंग कैसी है, बिकॉज अगेन चैलेंजेस आएंगे. और मैं हमेशा कहती हूँ, और मैंने कल भी, मैं एक इवेंट पे थी और मैंने वहाँ पे भी यही बात बोली थी, और मुझे किसी ने ये बात बहुत बहुत ओपनली समझाई थी कि को फाउंडर की जो ज़रूरत होती है ना, वो अच्छे वक्त के लिए नहीं होती है. वो तब होती है जब थिंग्स गो रॉन्ग और आपके पास एक कंधा है रोने के लिए, जो आपके आंसू को समझ पाए. बिकॉज अगर आप सपोज आपका जो लाइफ पार्टनर है, आपकी स्पाउस है, वो आपके बिजनेस में नहीं है, तो शायद वो आपकी स्ट्रीम से नहीं है, आपके बिजनेस से नहीं है, आपकी इंडस्ट्री से नहीं है, वो शायद आपकी प्रॉब्लम समझ नहीं पाएंगी कि वो कितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. आप उन्हें समझाने की कोशिश ज़रूर करोगे, वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगी या करेंगे. एक्चुअली अगर एक फीमेल को फाउंडर है तो ऑब्वियसली अ मेल स्पाउस विल सपोर्ट, बट वो आपको ना कहीं पर भी आपकी भाषा में बात नहीं कर पाएंगे. आई थिंक आपकी लैंग्वेज में बात नहीं कर पाएंगे, तो वो आपका को फाउंडर कर पाएगा. आप उसके साथ प्रॉब्लम डिस्कस करोगे, उसे समझ में आएगा कि अरे हाँ ये प्रॉब्लम है. तो उस टाइम पे एक पर्सन आपको चाहिए जिसके साथ आप बैठ के एक्चुअली खुल के बात कर सको. क्या आप दोनों के बीच में वो ट्यूनिंग है? और मे बी अगर 3 फाउंडर्स है तो क्या आप तीनों के बीच में वो ट्यूनिंग है? क्या आप एक दूसरे के सामने खुल के बात कर सकते हो? क्या आप एक दूसरे के सामने पर्दा तो नहीं रख रहे हो? क्या आप एक दूसरे के लिए आप एक दूसरे से लड़ सकते हो? बिकॉज अगर आप एक दूसरे से लड़ सकते हो तो आप अपना पॉइंट रख सकते हो. और लड़ने का मतलब ये नहीं है कि लड़के अलग हो जाना, लड़के एक साथ रह सकते हो. तो वो जब हम कॉल्स लेते हैं, जब हम फाउंडर्स से मिलते हैं, जब हम पूरी फाउंडिंग टीम से मिलते हैं, तो जिस तरीके से आंसर्स आ रहे होते हैं, बिकॉज फाउंडर्स के लिए भी एक्सटेम्पोर होता है, वो भी प्लान्ड नहीं होते हैं. उन्हें हम कोई क्वेश्चनर नहीं देते कि आप ये रट के आ जाना और हम आंसर्स ले लेंगे. कुछ भी होता है. तो क्या एक फाउंडर डोमिनेट तो नहीं कर रहा? क्या एक फाउंडर जो उसकी एक्सपर्टीज नहीं है, जो दूसरे को फाउंडर की एक्सपर्टीज है, वहां पर भी ये तो नहीं बोल रहा कि अरे मैं बता दूंगा बिकॉज मैं इन्वेस्टर्स को देखता हूँ? क्या वो ईगो तो नहीं है? तो ऐसे कुछ बेसिक ट्रेट्स होते हैं जो आपके, अगर लैंग्वेज में, आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोलूँ तो ग्रीन फ्लैग होते हैं एंड रेड फ्लैग होते हैं. थैंक यू फॉर ब्रेकिंग इट डाउन. मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि मेरे तो रिलेशनशिप भी वाइफ है और को फाउंडर भी वाइफ है, तो दैट्स अ रिस्की प्रोपोजिशन टू हैव. बट मजा आता है. ऑफिस की चीजें जब घर जाती है और घर की चीजें जब ऑफिस आती है, वो थिन लाइन बनाना. इसीलिए रिलेशनशिप फाउंडर्स में यूजुअली जहाँ पर हस्बैंड वाइफ डुओ होता है ना, वो थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है. यस. एंड अकॉर्डिंगली अगर इन्वेस्टर्स की लैंग्वेज में बोलते तो थोड़ा रिस्की होता है. और अगर हम यही देखें ब्रदर्स में, अगर ब्रदर्स को फाउंडर्स है ना, तो उसमें आई थिंक रिस्क थोड़ा कम होता है. बिकॉज उनकी अपब्रिंगिंग सेम है ना, उनके पेरेंट्स सेम है, उनका थॉट प्रोसेस सेम है, और वो बचपन से लड़ते आए हैं. मतलब एक दूसरे को मारेंगे भी, लड़ेंगे भी, सर भी फोड़ लेंगे. शायद अब इतने बड़े होने के बाद ये चीजें नहीं होंगी, बट एक आदत है. और उसके बाद ये भी पता है कि हमने रहना तो साथ ही है, एक ही हो जाएंगे, बिकॉज वो रिलेशनशिप ऐसा है. तो वो एक डिफरेंस आता है. एंड व्हाट इफ वो बिजनेस वाला रिलेशनशिप पे विद टाइम बनाओ पहले, मतलब नहीं, जो पर्सनल रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशनशिप है, वो विद टाइम आया हो और आप पहले से ही काम कर रहे हो, साथ में एक दूसरे को समझ रहे हो, उसमें आई थिंक फ्रेंडशिप प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. बिकॉज किसी भी रिलेशनशिप में आप देखोगे ना, मतलब वो चाहे आपके फाउंडर्स के साथ है, चाहे आपके इन्वेस्टर्स के साथ है, चाहे आपके को फाउंडर्स के साथ है, या फिर टीम के साथ है, पार्टनर्स के साथ है, हर जगह पे जहाँ पर दोस्ती डेवलप होने लगती है ना, जहाँ पे फ्रेंडशिप डेवलप होने लगती है, बिकॉज आई थिंक फ्रेंडशिप इज द मोस्ट अनफिल्टर्ड रिलेशनशिप. यस. वहाँ पर ना आप पर्दा नहीं रखते हो एक्चुअल फ्रेंड्स, रियल फ्रेंड्स के साथ, राइट? सो वहाँ पर जहाँ पर आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली सब कुछ बात कर सकते हो. और इसीलिए एज इन्वेस्टर्स इफ़ यू सी, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने फाउंडर्स के साथ ना, जो मेन फाउंडिंग जीपीज होते हैं, वो अपने फाउंडर्स के साथ बैठते हैं, बात करते हैं. दे गो आउट फॉर कॉफ़ी, लंचेस, डिनर्स टू मेक दैट रिलेशनशिप. क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स यही चाहते हैं
कि बाकी प्रोसेस हमारी टीम देख रही है, बाकी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी टीम देख रही है, हाँ बट जब चीज़ें खराब हो तो फाउंडर इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि वो हमारे पास आ सके, वो हमें कॉल कर सके. आई थिंक हम जितनी आसानी से ये पॉइंट बोल रहे हैं उतना ही कॉम्प्लेक्स है ये पॉइंट, क्योंकि ये मैंने देखा है और आपने तो देखा ही होगा बिकॉज यू आर एन इन्वेस्टर. फाउंडर और इन्वेस्टर के बीच में ना काफ़ी बार एक फिल्टर्ड रिलेशनशिप होता है, वो एक्सप्रेशन नहीं होता है क्लियरली. फाउंडर को लगता है मेरे को इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन ही मीट करती रहनी है, इन्वेस्टर अपना रोल निभा रहा है, वो अपने हिसाब से गाइड कर रहा है. एंड देन कई बार फाउंडर को इन्वेस्टर के डिसीजन से डिसएग्रीमेंट भी होता है कि नहीं यार ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बट वो अंडर प्रेशर होता है, वो समझ नहीं पाता कि वो थिन लाइन कौन सी है जहाँ पे आके मैं अपना पॉइंट भी रख सकता हूँ. आई थिंक अगर वो रिलेशनशिप मोर देन अ प्रोफेशनल वैसा कि एकदम आपको येस और नो में आंसर करना है, वो थोड़ा सा इंटरपर्सनल होगा जहाँ पे आपस में बात कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने थ्रेड्स शेयर कर सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक एज अ फाउंडर आपके लिए चूजिंग द राइट इन्वेस्टर एक बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है. आई नो कई बारी ऐसी नीड होती है, डेस्पिरेशन होती है जिसमें हमें पैसे की ज़रूरत होती है एंड वी डोंट थिंक कि हम किसे ऑनबोर्ड कर रहे हैं, बट क्या वो लॉन्ग रन में आपको सपोर्ट करेगा? इट्स लाइक यू नो डूइंग समथिंग विच यू नो इज़ हार्मफुल फॉर योर बॉडी, बट क्योंकि अभी वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट दे रहा है, शॉर्ट टर्म प्लेजर दे रहा है, तो उस वजह से हम कर रहे हैं और लॉन्ग रन में वो हमें हार्म करेगा. और एज अ फाउंडर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज yesterday only, you know, I was listening to some great founders and they have made something and they were mentioning कि हमारे पास एक ही रीज़न है गिव अप ना करने का, कि हमारे पास ना इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारी टीम में है. तो आपका एक डिसीजन ना काफ़ी लाइफ्स को अफेक्ट करता है. Yes. Investors is one of them, but investors are still taking a conscious call and they know कि this can go zero. But आपकी टीम, उनकी फैमिलीज, जो लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो आपके साथ खड़े हैं, जो शुरू से आपके साथ खड़े हैं, जो बैड टाइम्स में भी आपके साथ खड़े हैं, तो आपकी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है. तो जब भी आप एक इन्वेस्टर से भी बात करो एज अ फाउंडर, आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू हैव द राइट कॉन्वर्सेशन. करेक्ट. इन्वेस्टर्स ऑल्सो वॉन्ट्स यू टू ग्रो. अगर आपको लगता है कि कोई इन्वेस्टर आपको कोई सर्टेन टारगेट अचीव करने के लिए बोल रहे हैं विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल और इज़ वेरी डिफिकल्ट, और आपकी उसकी वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ज़्यादा आने वाली है, टेल देम ना, स्पीक टू देम. कम्युनिकेशन इज द की ऑफ एवरीथिंग. करेक्ट. हम कम्युनिकेट ही नहीं करना चाहते, हम बात ही नहीं करना चाहते. एवरी डिस्प्यूट, बिकॉज आई हैव बीन इनटू लिटिगेशन, राइट, बहुत सारे डिस्प्यूट सिर्फ कम्युनिकेशन से रिजॉल्व हो जाते हैं. Definitely. इसीलिए बहुत सारे केसेस फाइल जरूर होते हैं, बट उनमें कभी डिक्री नहीं आती, एज अ जजमेंट नहीं आती, क्योंकि वो पहले ही मीडिएशन में जाते हैं, मीडिएशन में सॉर्ट हो जाते हैं. तो अगर वो मीडिएशन में सॉर्ट हो सकते हैं तो आप केस ही फाइल मत करो ना, पहले ही जाके कम्युनिकेट कर लो. बट अनफॉर्चुनेटली उसमें ना हमारी ईगोज बीच में आ जाते हैं, हमारे कंस्ट्रेंट्स बीच में आ जाते हैं कि मैं इन्वेस्टर को ये बोलूंगा कि मैं ये अचीव नहीं कर पाऊंगा और मैं रीजंस भी बताऊंगा, बट मुझे पैसा नहीं मिला तो मुझे तो नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग करना है. आप स्टार्टअप फंडिंग रेज करने के लिए नहीं बना रहे हो, दैट्स द बॉटम लाइन. करेक्ट. करेक्ट. फंडिंग इज एन ऑब्लिगेशन. प्लीज इसको समझना शुरू कीजिए. एज अ फाउंडर इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो कि फंडिंग एक हेल्प है, एक सपोर्ट है, एक ऑब्लिगेशन है. आप डेट नहीं ले रहे हो, बट आप इक्विटी से भी जो पैसा ले रहे हो वो ऑब्लिगेशन तो है ना. एंड एग्जिट्स जो होते हैं ना, उनको हमारे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के एंगल से देखना शुरू करना पड़ेगा. हम एग्जिट्स को सेलिब्रेट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिटर्न है ना. ऐसे ही जब हम डेट, हमें पता है कि हमारे को वो रीपे करना ही है, करना ही है, करना ही है, तो हमारे माइंड में शुरू से होता है, हम उसको प्रिपेयर करके चलते हैं कि हमारे को वो रीपे करना है, उसके लिए हम पूरे प्रोविजंस भी बनाते हैं, हम सब कुछ करते हैं. बट व्हाई नॉट फॉर इक्विटी? आप इक्विटी भी एक तरीके से लोन ही ले रहे हो ना. करेक्ट. करेक्ट. विद प्रॉमिसेस, विद बिगर प्रॉमिसेस कि आप बहुत मल्टीपल रिटर्न्स बना कर दोगे. सो इफ़ यू आर गोइंग टू मेक मल्टीपल रिटर्न्स, तो आप उसके लिए प्रिपेयर भी तो हो, एंड उसके लिए आपको ऑनेस्ट होना ज़रूरी है, खुद के साथ, खुद की टीम के साथ, खुद के इन्वेस्टर्स के साथ. एंड कम्युनिकेशन. एवरी इन्वेस्टर अंडरस्टैंड्स कि किस बिजनेस की कितनी ग्रोथ है. इट्स लाइक टीचर को पता है, पेरेंट्स को पता है कि मेरे बच्चे की कैपेबिलिटी कितनी है, फिर भी हम उसे पुश तो करेंगे ना.
कि आप ये भी करने की ट्राई करो। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ होगा ही नहीं, तो आप पहले ही बोल दो ना कि मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा, शायद ये कर लूँ। अगर मैंने आपको एज एन इन्वेस्टर, किसी ने आपको बोला कि ए पॉइंट तक जाना है, विच इज से 10 किलोमीटर्स अवे, आपने बोला कि विद राइट नाउ जो मेरी कैपेसिटी है, मैं 10 किलोमीटर तो नहीं, बट मैं 3 तो आराम से पहुंच सकता हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ मैं 5 पहुंच जाऊँ या 6 पहुंच जाऊँ। तो वहां पर इन्वेस्टर को भी समझ में आ रहा है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हो, और साथ ही साथ आपने उनको फॉल्स एक्सपेक्टेशंस भी नहीं दी। तो वो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस अग्री मत करो अगर आप फुलफिल नहीं कर सकते। आई थिंक वेरी वेरी वैलिड पॉइंट्स नेहा, बिकॉज यही सारी चीज़ें अल्टीमेटली फाउंडर इन्वेस्टर कॉन्फ्लिक्ट में रिजल्ट करती हैं। अगर हमने वो जैसे कहते हैं ना कि सेल्स में कहते हैं कि अगर आपने ऑनबोर्डिंग से पहले टाइम अपने कस्टमर के साथ अच्छे से स्पेंड किया है तो आपका आने वाला टाइम बहुत लंबा होगा और एक्सपेक्टेशन क्लियर होंगी उसके साथ होगा। अगर आपने हरी में एकदम ऑनबोर्डिंग कर लिया कि यार मेरे को तो क्लाइंट चाहिए, मेरे को तो सेल्स करनी है, तो शायद वो शॉर्ट टर्म क्लाइंट हो, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो। और फाउंडर इन्वेस्टर रिलेशनशिप भी वही, आज हमें देखना होगा कि अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट काफ़ी एडुकेटेड एरिया बनता जा रहा है। लोग बात कर रहे हैं। देयर वॉज टाइम जब ये स्टार्ट हो रहा था इंडिया में और लोग बात नहीं करते थे कि यार कैसी होती है इन्वेस्टमेंट, कौन करता है इन्वेस्टर कैसे होते हैं। एंड जैसे वो बचपन में नहीं होता कि स्टूडेंट को हमेशा ये लगता है कि मेरा टीचर अभी क्या कर रहा होगा। वो एक पोयम भी है एक कि मेरा टीचर घर पे क्या करता होगा, मेरा टीचर ये क्या करता होगा, मेरा टीचर ऐसे के। तो हम बड़ा उस रिलेशनशिप को ना ऐसे ड्रीमी रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर देते हैं कि मेरा टीचर ये है, मेरा टीचर, जबकि टीचर भी एक इंसान है। टीचर भी वही कर रहा है जो आपके फैमिली मेंबर्स कर रहे हैं, वो भी एक इंसान है, वो भगवान नहीं है वो भी। तो उसी तरीके से आई थिंक फाउंडर इन्वेस्टर रिलेशनशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और समझने की ज़रूरत है। इसमें एक और पार्ट आता है नया, जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स की ही हम बात कर रहे हैं, तो जैसे ही मनी पंप इन होती है एक बिजनेस में, अभी उसका यूज़ होना है, अभी वो डिस्ट्रीब्यूशन होना है उस मनी का कि इतना पार्टी यहाँ जाएगा, इतना पार्टी यहाँ जाएगा, और वहाँ पे फाउंडर इज टेकिंग अ कॉल, टॉकिंग टू इन्वेस्टर एटसेट्रा एटसेट्रा। आई थिंक यू वुड हैव आल्सो सीन दिस कि मनी का मिसयूज भी होता है कई बार और मनी का राइट यूज भी होता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि मनी का राइट यूज कैसे होता है अगर मनी आ गई है, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो फाउंडर कर देते हैं इन्वेस्टमेंट लेने के बाद, एक राउंड रेज करने के बाद? जब भी कोई फाउंडर अपनी इन्वेस्टमेंट लेने आता है तो वो अपने पिच डेक में यूजुअली एक स्लाइड डालता है विच इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। ठीक है। सो दैट इज द ब्रॉडर एंगल कि आपके फंड्स कहाँ जाने वाले हैं। बिकॉज और वो एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए जानना ज़रूरी क्यों है, बिकॉज उससे हमें एक आइडिया लगता है कि हमारे फंड्स की यूटिलाइजेशन कहाँ होगी, राइट? हो सकता है एज एन इन्वेस्टर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि कोई स्टार्टअप जो कम मार्केटिंग में काम कर सकता है, ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकता है, वो मार्केटिंग पे ज़्यादा बर्न करे। बट उस फाउंडर को ये लगता है कि मुझे मार्केटिंग पे बहुत बर्न करने की ज़रूरत है। सो अगर उसने पहले ही मुझे बता दिया तो आई एम टेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स। मेरे इन्वेस्टमेंट डिसीजन उस फैक्ट पर हुई है कि आप यूटिलाइज कहाँ कर रहे हो फंड्स को। आप कितना टीम पे लगाओगे, कितना ट्रैवल पे लगाओगे, कितना प्रोडक्ट पे लगाओगे, कितना टेक्नोलॉजी पे लगाओगे, कितना मार्केटिंग पे लगाओगे, इन सब के बारे में आपने मुझे स्प्लिट दिया है। तो पिच डेक इज अ प्रॉमिस, ठीक है, राइट? आप उस पिच डेक से उस प्रॉमिस को फुलफिल करने के लिए आपने वो पिच डेक बनाया। आपने कहा कि मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि मुझे पैसा यहाँ यहाँ यूज़ करना है। अब जब मंथली MIS आएगी, क्वार्टरली MIS आएगी, राइट? जब हम वो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट्स मंगवाएंगे उसमें नज़र आएगा कि वो पैसा कहाँ यूटिलाइज हुआ है। तो अगर वो मिसमैच है तो दैट्स अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑल्सो, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, कि एज एन इन्वेस्टर मतलब इट्स लाइक कि मैंने पैसे लिए कि मुझे नीड है XYZ चीज की और मैं उसे लग्जरी पे स्पेंड कर रही हूँ। तो इवेंचुअली वो नीड या तो नहीं थी या फिर मेरी लग्जरी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी कि मैंने नीड को जाने दिया। करेक्ट। अब वो नीड जो उस स्टार्टअप की थी वो अगर फुलफिल नहीं हुई तो उसका, बिकॉज एवरी कॉइन हैज टू फेसेस, तो उसका इम्पैक्ट क्या है? आप आज जो पैसा अपनी ग्रोथ में डाल सकते थे, अपने स्टार्टअप की ग्रोथ में डाल सकते थे और आप एक सर्टेन नंबर तक पहुंच सकते थे,
आपने उसको डाइवर्ट कर लिया, मे बी फॉर पर्सनल यूज, मे बी फॉर लग्जरी, मे बी गलती से कहीं यूज कर लिया, राइट? मे बी आपकी पर्सनल नीड ज्यादा थी, बट आप इन्वेस्टर को लूप में तो रखोगे, करेक्ट, आप डिसीजंस में कि मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ। आप अपने प्रोमिस से जब डाइवर्ट कर रहे हो, सो जिसके साथ आपने प्रॉमिस किया, इट्स बेटर टू टेक दैट पर्सन इन लूप, अंडरस्टैंड कि मैं ये डाइवर्जन करने वाला हूँ, इज दिस द राइट डिसीजन टू मेक? हो सकता है वो इन्वेस्टर आपको एक बेटर सोल्यूशन दे दे, सही बात है, राइट? सो आई थिंक इसीलिए एक ज़रूरत होती है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स की, एंड मंथली MIS या क्वार्टरली MIS की, जो फाउंडर्स को एक ऑब्लिगेशन लगती है, जो फाउंडर्स को लगता है कि हम अपने काम पे ध्यान दें या हम अपने MIS बनाएं, बिकॉज इन्वेस्टर्स को MIS में काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं, बट आप ये देखिए कि वो MIS आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। और कई बार फाउंडर्स MIS में गलत फिगर्स भी दे देते हैं, अच्छा, कि थोड़ी सी बढ़ा दी, राउंड ऑफ कर दी, बट आप एक्चुअल दो ना। वो MIS हम इसलिए नहीं मंगा रहे बिकॉज आपको कंट्रोल करना है, जैसे हम टीम मेंबर्स के साथ करते हैं। हम उनसे अगर हम पूछते हैं कि आपने क्या किया इस पूरे हफ्ते, तो इसलिए नहीं पूछते कि हमारे टीम मेंबर्स पे हमें ट्रस्ट नहीं है। करेक्ट, अगेन हमारे को ऐसा नहीं है कि हमारे फाउंडर्स पे ट्रस्ट नहीं है, हम उनसे इसलिए पूछते हैं बिकॉज वी ट्रीट फाउंडर्स एज इन्वेस्टर्स, एज आर फ्रेंड्स, एज आर किड्स, एज आर मे बी समबडी जिनकी हमें शायद हम कहीं सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारे को अगर राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो राइट डिसीजंस नहीं होंगे। इट्स लाइक कि आप डॉक्टर को सही सही सिम्टम्स नहीं बताओगे तो वो सही मेडिसिन नहीं दे सकता। हमें MIS देख के लग रहा है अरे ये स्टार्टअप तो बहुत अच्छा कर रहा है, एकदम मतलब मज़ेदार, और हम अपना दुनिया में हैं और हम सपने देख रहे हैं कि इतने X रिटर्न आएगा, उतने X रिटर्न आएगा। और इवेंचुअली होता क्या है, एक दिन एक फाउंडर फ़ोन करता है और वो बोलता है मैं तो बंद हो रहा हूँ, सब फट गया। एंड हमें समझ ही नहीं आता है, मतलब उस टाइम पे हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि ये हुआ कैसे। हाँ, और हम जिनको आंसरेबल है ना, फिर वो हमें क्वेश्चंस करता है कि आपने देखा नहीं, आप MIS नहीं देख रहे थे, आप फाउंडर से मिलने नहीं जा रहे थे, आप उनके ऑफिस नहीं गए, आपने उनकी टीम से बात नहीं करी। तो एज एन इन्वेस्टर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब होता है। एनी फाउंडर, एनी कंपनी which goes zero takes those investors with them. तो that's why I say कि founders के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी responsibilities को समझना। वेरी इंपॉर्टेंट। रिपोर्ट कार्ड है आई थिंक MIS अपना, Absolutely. आपको खुद ही एनालाइज होगा कि आप कितना कौन से एरिया में स्कोर कर रहे हो। Absolutely. बॉडी टेस्ट आप करवाते हो फ्रीक्वेंट बेसिस पे, वैसे ही MIS है आपकी, कि आप अपने स्टार्टअप का एक टेस्ट कर रहे हो कि मेरा स्टार्टअप कहाँ खड़ा है, और उसमें अगर कुछ गलतियां भी है ना तो आप आके बताओ, आप पूछो, आप समझो, एंड उनको इम्प्रूव करो, तभी तो आप आगे बढ़ोगे। अदरवाइज आप सेम गलतियां करते रहोगे तो वो गलतियां कई बार बहुत महंगी पड़ सकती हैं, विच कैन लीड टू एवरीथिंग शट डाउन। तब आप क्या करोगे? बिकॉज हमने एज इन्वेस्टर्स शायद हम लोग ये कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेंगे कि हमारा लॉस हो गया, बट एज फाउंडर आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका ब्लड, स्वेट, फैमिली सब इन्वेस्टेड है इसके अंदर। आई एम श्योर जब एक स्टार्टअप जब बनता है, राइट, वो फाउंडर ये नहीं देखता है कि दिन है या रात है, वो पूरी मेहनत करता है। तो उस टाइम पर वो मेहनत करने में वो अपनी फैमिली को भी इग्नोर कर रहा है, अपने बच्चों को भी इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मुझे कुछ बनाना है, मुझे कुछ इम्पैक्ट लाना है, मुझे कुछ डिफरेंट करना है। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में सिर्फ आपके वो वर्किंग आवर्स नहीं है, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में वो सारी सेलिब्रेशंस भी हैं जो आपने मिस करी हैं अपनी फैमिली के साथ, वो सारी टाइम है जो आप अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते थे, आपकी खुद की हेल्थ है, मेंटल, फिजिकल, एवरी। सो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमसे कई ज़्यादा हाई है। सो आपको तो खुद के साथ तो सच्चाई में रहना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक फाउंडर को, क्योंकि हम यूजुअली जब हम रूटीन में होते हैं ना तो हम उसमें इतना एनग्रोस्ड होते हैं कि हमें आसपास की चीज़ें नहीं दिखती। इसीलिए एवरी फाउंडर में भी 15 दिन में, 1 महीने में, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन सी स्टेज पर हो स्टार्टअप के, आपकी टीम कितनी स्ट्रांग है, आपको थोड़ा टाइम अलग से बैठना चाहिए और आपको दूर से अपने इस पूरे स्टार्टअप को देखना चाहिए कि ओके, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो इसको रन नहीं कर रहा और एक ही बंदा है जो रन कर रहा है, अब आप उसको देखो उस एंगल से। आई थिंक किसी तो मूवी में ये डायलॉग भी था कि जब भी मुसीबत आए तो अपने खुद के पड़ोसी बन जाओ।
and you will get the advice. Right. I don't remember the movie, but हाँ मुझे ये डायलॉग याद है, right? तो आप अपने खुद के दोस्त बनो ना, और आप खुद को एक डिस्टेंस से देखो, और वो एज एन इंडिविजुअल भी जरूरी है, एज अ स्टार्टअप भी जरूरी है. Continuous detachment from your own It things. is very important. It is very important. Because again, डीप आप बहुत हो, आपको कभी कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा ना, ये समझने के लिए रियलिटी क्या है. अदरवाइज जब हम कुछ कर रहे होते हैं ना, तो हम इतने एनग्रोस्ड होते हैं, हमें लगता है कि हम सब सही कर रहे हैं. तो वो इंट्रोस्पेक्शन करना बहुत जरूरी होता है. करेक्ट. देयर इज अनदर साइड, इन्वेस्टर्स वाली साइड पे, जहाँ पे जैसे आपने बताया कि फाउंडर गलतियाँ कर रहा है, सही चीज़ कर रहा है, एटसेट्रा. इन्वेस्टर्स की भी अपनी लर्निंग होती है, एंड आई एम श्योर आपकी भी एक लर्निंग कर्व रहा होगा. वेरी स्टीप. तो या आई कैन अंडरस्टैंड. तो व्हाट वर सम ऑफ दोज मिस्टेक्स जो अर्ली स्टेजेस पे आपने करे, जिनसे आपने सीखा? व्हाट वर सम ऑफ द चैलेंजेस दोज यू फेस्ड एंड चैलेंजेस दोज यू फेस टुडे एज एन इन्वेस्टर? सो एज एन इन्वेस्टर से ज़्यादा ना, मेरे लिए सबसे बड़ा जो लर्निंग था वो आई थिंक मुझे तो पूरा पर्सनालिटी शिफ्ट करना पड़ा. बिकॉज आई कम फ्रॉम अ लीगल बैकग्राउंड, राइट? वहाँ पर आपकी एक अग्रेसिव पर्सनालिटी होती है. वहाँ पर यू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्ट्स, एंड देन यू लुक आउट फॉर एवरीथिंग, यू नो कि इसका प्रूफ का है. स्टार्टअप्स में प्रूफ्स कैसे लाओगे? स्टार्टअप्स इज ऑल अबाउट ड्रीम्स एंड स्टोरीज. स्टार्टअप्स इज ऑल अबाउट ये हो जाएगा. तो मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था टू ट्रस्ट ऑन द वर्ड्स, बिकॉज एज अ लीगल पर्सन यू ट्रस्ट ऑन डॉक्यूमेंट्स, यू ट्रस्ट ऑन फैक्ट्स. अब यहाँ पर तो हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं ना, तो वो एक बहुत बड़ी लर्निंग थी, और ये बहुत बड़ा शिफ्ट था जो मुझे खुद की पर्सनालिटी में करना पड़ा, विच वॉज नॉट ईजी. बिकॉज आपका एक सर्टेन पैटर्न होता है और आप वो करते हुए आते हो, उसको चेंज करना वॉज अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी. And but I've been blessed, as I told you. So I had the right mentors, I had the right team members. So वो चीज़ें I think ज़रूरी रहती हैं. As an investor, as an individual, आपको ये समझना. अगर मैं as an investor बोलती हूँ तो I think founder की चीज़ को समझना, और मेरी जो उसमें लर्निंग थी वो ये थी कि फाउंडर से एक्सपेक्टेशंस क्लियर होना. बिकॉज एज एन इन्वेस्टर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फाउंडर को सब पता होगा, बट ज़रूरी नहीं है. सही बात है. एंड आई थिंक वो जब हम बहुत सारे फाउंडर से मिल लेते हैं ना, उसके बाद ही समझ में आता है. इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आता. इट कम्स विद एक्सपीरियंस. इसीलिए जो मुझसे जो सीनियर इन्वेस्टर्स हैं, आई कीप ऑन लिसनिंग दैम, आई कीप ऑन यू नो आस्किंग दैम कि आपने इस फाउंडर में इन्वेस्ट क्यों किया, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है उस फाउंडर से. क्योंकि फाउंडर इज सपोज टू बी जैक ऑफ ऑल, बट प्रैक्टिकली वो एक बहुत बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर. बट हैविंग सेड दैट, फाउंडर इज एक्चुअली हैव टू हैव अ लिटिल नॉलेज अबाउट एवरीथिंग. And you know, इस point पे I would like to highlight especially compliances, because non-compliances are leading to very very big companies a very 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 big cost, and we know best of best examples. तो फाउंडर्स को राइट कंसल्टेंट्स ढूंढना, राइट टीम ढूंढना, ये बहुत ज़रूरी है. सो अगेन एज एन इन्वेस्टर मुझे वो समझने में थोड़ा टाइम लगा कि फाउंडर को नहीं पता हो सकता. अगर अर्ली स्टेज इन्वेस्टर तो हो सकता है फाउंडर जब आपके पास है तो उसे ये भी ना पता हो कि टर्म शीट क्या होती है. अभी तो फिर भी टचवुड यू नो काफ़ी सारी हमारे पास चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉडकास्ट हैं, बहुत सारी इंटरनेट पे चीज़ें हैं, इंस्टाग्राम पे चीज़ें हैं जो हमें सिखा देती हैं. बट आई थिंक जब शुरू हुए थे तब तो शायद 2021 के आसपास बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे भी आते थे जिनको नहीं पता होता था. बहुत सारे फाउंडर्स टियर 2 टियर 3 के आज भी ऐसे होंगे जिनको शायद टर्म शीट या टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होंगी, जो इस इकोसिस्टम के जार्गन से इतना अवेयर नहीं होंगे. तो एज एन इन्वेस्टर मुझे वो समझना भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इम्पॉर्टेंट लर्निंग लगी. और ऑब्वियसली स्पेंडिंग टाइम विद फाउंडर्स, अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉब्लम्स, रिलेटिंग विद देयर प्रॉब्लम्स, एंड उनके साथ उस तरीके से कंफर्ट लाना कि वो मुझसे बात कर सकें, मैं उनसे बात कर सकूं. दीज हैव बीन सम ऑफ द की लर्निंग्स. और बाकी लर्निंग इज स्टिल ऑन गोइंग, तो वो तो चल ही रही है. The panel which I attended, and you were a speaker, you were the only female speaker, and you talked about it as well. What do you think, how
this area of investments and entrepreneurship, startups is evolving for female? Are you able to see more female entering into this space, or is it still fresh, still new for them? No, it has grown. It has grown to a level. So, female founders are coming up. They are taking charge of their lives. And, we are in tier 1. We are blessed. हमारे आसपास बहुत सारी फीमेल फाउंडर्स हैं एंड हम सक्सेसफुल फीमेल्स देख रहे हैं. हमारे पास बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल फीमेल्स हैं, राइट. राधिका गुप्ता मैम, शी इज़ वन ऑफ देम. वो फीमेल हैं एंड शी इज़ मैनेजिंग फाइनेंस, जो यूजुअली कई लोगों के माइंड में आज भी ये हो सकता है कि फाइनेंस और फीमेल्स मिसमैच है, बट ऐसा नहीं है. If we talk about, Sargun. So, I think they are a cute couple, Sargun and Ravi, right? But Sargun takes care of the finances. उन्होंने काफ़ी अपनी पोस्ट वगैरह में बोला है. So, किसी भी फील्ड में हो सकता है, राइट. किसी भी फील्ड में. आज हमारे पास टेक्नोलॉजी में भी फीमेल फाउंडर्स हैं. Yes. आज हमारे पास आई थिंक स्पेस में भी फीमेल हैं. तो आई थिंक ऐसी कोई स्पेस अब बची नहीं है. हाँ, फीमेल्स ग्रो कर रही हैं एंड आगे बढ़ रही हैं, ये ज़रूर हो रहा है. बट उसी के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारे मेल मेंबर्स, उनकी वो ट्रेनिंग हो रही है कि उन्हें ये समझ में आए हाउ टू लिव विद अ सक्सेसफुल विमेन. दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या फीमेल सक्सेसफुल हो रही है. क्वेश्चन ये है कि क्या मेल्स सक्सेसफुल फीमेल के साथ रह पा रहे हैं. And why are you saying this? Because मेल मेंबर्स आज भी मेजर, especially in Indian society, and I can be completely wrong, this is not from any research or something, this is particularly my opinion which I have seen around. So मेल मेंबर्स से expectations आज भी कम है as compared to a working female. Yes. चाहे वो घर मैनेज करने की है, चाहे वो बच्चे मैनेज करने की है, एंड इन सब के साथ उन्हें काम भी मैनेज करना है. सो आई थिंक अब चीज़ें बदल रही हैं. आई थिंक जो मिलेनियल्स हैं, जेनजीज हैं, वो मेल्स भी ऑलरेडी इस तरीके के आ रहे हैं जहाँ पर दे अंडरस्टैंड कि वी बोथ आर वर्किंग, तो हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये घर हम दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. बट इंडिया में अगर हम परसेंटेजेस में बात करें तो डिवोर्स परसेंटेजेस आर इंक्रीजिंग. तो कुछ तो गलत हो रहा है. सही बात है. अनफॉर्चुनेट केस हुआ है कोलकाता में. उस लड़की ने काम किया है, वो सक्सेसफुल थी, वो डॉक्टर थी, वो मेहनत कर रही थी, वो अपना काम कर रही थी, राइट. बट ऐसा क्या उसने गलत किया कि शी हैड टू लूज हर. तो आई थिंक वो वहाँ उन एक्चुअली इन केसेस की वजह से मैंने आपको ये बोला कि क्या मेल्स सक्सेसफुल फीमेल्स के साथ रह पा रहे हैं. नहीं, आई कम्प्लीटली अग्री. ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स आते हैं सामने जहाँ पे मेल ईगो प्लेज अ रोल कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, ये कैसे हो सकता है. तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी, क्योंकि ये जो अनफॉर्चुनेट केसेस हम देख रहे हैं, अपने आसपास सुन रहे हैं, उसकी वजह से पेरेंट्स के लिए ना दोनों बच्चे बराबर है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है. बट लड़की के लिए सेफ्टी कंसर्न क्यों है? क्योंकि शायद जो लड़का है वो उस लड़की को सेफ रख नहीं पा रहा है. करेक्ट. अगर हमारी गर्ल्स भी सेफ हों. आई हैव लिव्ड इन दुबई, राइट. इट्स अ सेफ प्लेस. वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रात को निकले हो, दिन में निकले हो, यू आर सेफ. तो हमारे इंडिया में भी तो हो सकता है. एंड आई थिंक वो होना चाहिए, हो रहा है. मतलब आज दिल्ली में मैं कई बार बाहर निकलती हूँ फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मुझे कभी नहीं लगा ऐसा. तो इट्स नॉट कि नहीं हो रहा, बट कहीं ना कहीं आज भी हमारी सोसाइटी का कोई पार्ट ऐसा है जहाँ पर शायद थोड़ी एजुकेशन की ज़रूरत है, थोड़ी लर्निंग की ज़रूरत है. तो आई थिंक मुझे पर्सनली एंड आई थिंक जितनी ज़्यादा फीमेल लीडरशिप रोल्स पे आएंगे, जितना ज़्यादा वोकल होंगे अपनी चीज़ों को लेके, उतना ज़्यादा इन चीज़ों की समझ सब में आएगी और वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जहाँ पे सबको लगेगा कि हाँ यार, दिस नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड एंड एक्सेप्टेड. एब्सोल्युटली. एंड फीमेल फाउंडर्स और को फाउंडर्स होने से ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं. एम्पैथी. फीमेल्स में वो
मतलब वी आर ब्लेस्ड विद एम्पैथी. तो वो जो एक एस्पेक्ट आता है ना, वो फीमेल फाउंडर्स के साथ इट्स नॉट स्टैंडर्ड अक्रॉस, बिकॉज बहुत सारे मेल्स भी बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, बट यूजुअली एज अ जेंडर अगर हम देखें तो फीमेल फाउंडर्स के साथ एम्पैथी ज़्यादा आती है, फीमेल फाउंडर्स के साथ पेशेंस ज़्यादा आती है. yes राइट, फीमेल फाउंडर्स आपको परसिस्टेंस उसमें ज़्यादा होती हैं. तो आई थिंक ये कुछ बेसिक ट्रेट्स जो एक फीमेल को फीमेल बनाते हैं ना, वो जब वो स्टार्टअप में आते हैं तो वो स्टार्टअप की ग्रोथ में एक एडिशनल सपोर्ट करते हैं. एंड फीमेल्स आर ग्रेट मैनेजर्स, दे मैनेज multiple things together without getting stressed like they cannot, they don't have option. Right, तो because females are better managers in all aspects. वो आपके साथ बैठ के आपकी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करेंगी, आपको डांटेंगी भी, आपको समझाएंगी भी, और probably आपको पूरा गाइड एंड हैंड होल्ड भी करेंगी. तो एज अ टीम मेंबर ऑल्सो हैविंग फीमेल्स इज अ ब्लेसिंग. मतलब ऑनेस्टली आई रिमेम्बर अजिलिटी में प्रशांत सर, ध्यानु सर वर दी फाउंडर्स, एंड उसके बाद हम 5 लड़कियां थी. अरे AKCJ वेंचर्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो अमित जी इज द फाउंडर, उसके बाद अंजीत, मैं और नायरा, हम तीनों लड़कियां हैं. सो आई थिंक ऐसा नहीं है कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ रही हैं, दे आर डूइंग वेल. हाँ, इवन इन मैनेजमेंट रोल्स आई थिंक मैं भी क्रिएटर स्पेस, एजुकेशन स्पेस में बिलोंग करता हूँ, तो बहुत सारे मैंने फीमेल ज़्यादा देखे हैं. इन माई लास्ट रोल एज अ फाउंडिंग मेंबर आई वॉज मैनेजिंग अ टीम ऑफ 20 and 14 of them were females, 6 were males only. See? तो आई थिंक तो आई थिंक वो अब मेल्स को हमारे को एनकरेज करना कि काम कर लो. right. What are you solving for founders today and how are you thinking about the future? So there's no specific thing which I can say कि मैं उनके साथ बैठ के उनको इस पे क्लास दे रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. I try to understand what founders are going through. And then I try to, tell them my experiences, my learnings. So, जो मैंने बोला एक बहुत important aspect है investor और founder में friendship का, I try to develop that comfort कि founders के साथ बैठ के उनसे बात की जा सके, उनकी problem समझी जा सके, and अगर solutions दिए जा सकते हैं तो उन पे साथ में काम किया जा सके, and maybe उसको फिर revisit करें कि वो चीज़ सही से हुई, नहीं हुई, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ. अगर मुझे पता है कि एक फाउंडर एक प्रॉब्लम से फेस कर रहा है और दूसरा कर चुका है और उससे निकल चुका है, तो प्रॉब्ली आई ट्राई टू कनेक्ट देम. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई ट्राई. आई कैन कंट्रीब्यूट अपार्ट फ्रॉम वट एवर रोल आई एम प्लेइंग by analyzing startups, by evaluating, by having a call, by finalizing and everything. So you are the person and the investor with empathy for founders. I try to do that. No, you are. I think people should know it ki I requested Neha for this podcast and the obvious thing for me was कि she will say कि यार आप मेरे ऑफिस में आ जाओ, आप मेरे घर पे आ जाओ and let's do the podcast because her time is super important. But in contrary to it, she mentioned कि मैं स्टूडियो में आ जाऊँगी because I understand आप लोगों को equipments के साथ आना पड़ेगा, आपकी टीम आएगी, these equipments are sensitive. And I was like, oh, people are there who understand this pain. तो I think I should acknowledge it. It is important because हमारे लिए हमारे founders ही assets हैं. हम उनकी पेन नहीं समझेंगे तो फिर हम साथ में grow नहीं कर सकते. Correct. Very, very truly said, Neha. One of my last question to you is कि startups या कोई भी profession है, there is a clear road to enter. Let's say एक founder के लिए तो क्लियर रोड है कि कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको सॉल्व कर रहे हैं, धीरे धीरे करके डिस्कवर कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आई एम बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, अ फाउंडर, सॉल्विंग प्रॉब्लम. एंड देन प्रोफेशंस का तो रोल दिख जाता है. मेरे को इन्वेस्टर्स का रोल मतलब जो है उसमें जो लर्निंग कर्व है, जो लर्निंग पार्ट है, वो मुझे क्लियर नहीं दिखता. एंड मे बी मेरे को ही नहीं दिख रहा वो, और लोगों को पता हो, बट आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट इन ऑन द पॉडकास्ट. इफ somebody wants to enter into a space as of yours, what's the road? How they can? Okay. So, I think there is no straight path because startups हर थोड़े टाइम में एक नई चीज़ के साथ आ रहे हैं. Yes. बट कौन सी चीज़ आगे आने वाली है, चलने वाली है, सो हमें भी उसके लिए पढ़ना पड़ता है एज इन्वेस्टर्स, राइट. सो ऐसा कुछ नहीं है कि हमने एक डिग्री ले ली, नाउ वी आर अ वीसी और वी आर एन इन्वेस्टर.
VC और इन्वेस्टर इज द इन्वेस्टमेंट लर्निंग, जो ये हम किसी भी कोर्स की बात करें, राइट, बट उन कोर्सेज से जो स्किल्स मिली हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, दैट्स द रोल एन इन्वेस्टर प्लेज. तो कोई स्ट्रेट पाथ इसमें हो नहीं सकता, ठीक है. बिकॉज जैसे स्टार्टअप्स अपनी एक आइडिया से शुरू करते हैं, और सपोज आज एज अ फाउंडर मुझे कोई आइडिया आया, अब वो आइडिया सिर्फ मुझे आया है या बाकी लोगों को भी आया है, आई एम श्योर बाकियों को भी आया है. तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कितना बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. तो आप आइडेंटिफाई करते हो, आप लर्न करते हो, रिसर्च करते हो. अभी डेली बेसिस पर मेरे पास इतने सारे डेक्स आते हैं. अब मैंने एक डेक को खोला, मैंने उस इंडस्ट्री को देखा और वो इंडस्ट्री मुझे अच्छी लगी, मैं उसके बारे में थोड़ा स्टडी तो करूंगी क्योंकि अच्छी क्यों लगी. अभी कुछ चीजें पढ़ के शायद समझ में आ गई होंगी कि ये चीज पुरानी हो चुकी है, ये चीज नहीं हो चुकी है, या ये चीज नहीं आने वाली है, बट क्या एक्चुअली वो चीज चलेगी नहीं चलेगी, तो उसके लिए हमें भी इन डेप्थ पढ़ना पड़ता है. सो इसीलिए आई थिंक हमारी लर्निंग जितनी स्टीप होती है उतनी डाइवर्स भी होती है, बिकॉज स्पेशली सेक्टर एग्नोस्टिक अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको सारे सेक्टर्स पता होने चाहिए, which is something next to impossible, right? That's why we have teams जो अपने अपने fields के experts हैं. That's where analyst plays an important role. And I would really like to appreciate the people who are actually analyzing at the first stage. Because वो एक first screening कर रहे हैं basis certain facts जो pitch deck में है, और कई बारी pitch decks ऐसे होते हैं जिसमें कुछ information ही नहीं होती, but still every rejection can be an opportunity gone. So rejections have to be careful. Right? तो वो एक समझना चीज़ ज़रूरी होता है. तो as an investor we keep on learning, we keep on attending conferences, we keep meeting other investors, and that's why co-investments जो हैं वो बहुत बढ़ रही हैं. Because हो सकता है किसी एक VC की strength एक particular चीज़ है, say deep tech. डीप टेक इज समथिंग जो शायद मुझे समझ में नहीं आता, बट अगर उन्हें समझ में आता है और वो बहुत बुलिश है, तो एक सर्टेन बेसिक फैक्ट्स और बेसिक चीज़ें जो मुझे समझ में आती है, मैं उनको एनालाइज करके उन पे ट्रस्ट करके वी कैन को इन्वेस्ट, एंड दैट्स हाउ को इन्वेस्टमेंट्स आर हैपनिंग. तभी सिर्फ फाउंडर इन्वेस्टर मीट्स नहीं होती हैं, वाई देयर आर स्पेसिफिक VC मीट्स ऑल्सो. वो सिर्फ वहाँ पे गप्पे मारने थोड़ी आ रहे हैं, सबके पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, राइट? वहाँ पे इसीलिए आ रहे हैं कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है. हो सकता है कोई EV का ही इन्वेस्टर है और वो EV को बहुत अच्छे से समझता है क्योंकि उनका खुद का बैकग्राउंड EV का है, तो हम उनकी उस स्ट्रेंथ को अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस के लिए लीवरेज कर सकता है. सो आई थिंक दैट्स वेयर वी इन्वेस्टर्स से कि हमारा कोई स्ट्रेट पाथ नहीं होता है. वी कीप ऑन लर्निंग, वी कीप ऑन अंडरस्टैंडिंग. कुछ साल पहले शायद AI की बात भी नहीं हो रही थी, आज AI की बात हो रही, तो अब AI क्या है वो समझो. अभी आगे चल के जब हम थोड़ा सा और ग्रो करेंगे, ब्लॉकचेन समझेंगे, क्रिप्टो समझेंगे. आज बात हो रही है, बट आज शायद मुझे क्रिप्टो नहीं आता, मुझे ब्लॉकचेन नहीं आता, बट कब तक? आई थिंक आप तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्पेस में हो, क्योंकि आपको तो पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो आपको तो और ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है उस चीज़ को. और कोई सो इसीलिए कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम अभी, क्योंकि हमें पता है उसकी अंडरस्टैंडिंग इतनी जनरल में नहीं मिलती है, उसकी को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शायद इतनी जनरल में नहीं मिलती है, तो हम उनको एज एन एक्सेप्शन लेके चलते हैं कि वील रिफ्रेन फ्रॉम दीज सेक्टर्स जिसके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं है, करेक्ट, या वो आज भी ग्रे एरिया में है. सो एंड दैट्स वाई कई बार हमारे को ग्लोबल स्टडीज भी करनी पड़ती हैं कि आज जो US में चल रहा है वो कुछ टाइम के बाद इंडिया में होगा, या जो आज इंडिया में चल रहा है वो कुछ टाइम पहले US में हो चुका है. तो वहाँ की हम स्टार्टअप्स को स्टडी करते हैं, जब हम कंपैरिजंस करते हैं स्टार्टअप्स के, तो हम ग्लोबल लेवल पे भी देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में या इस पर्टिकुलर नीश में कितने ग्लोबल स्टार्टअप्स हैं और कितने एक्चुअली सक्सेसफुल हो चुके हैं. हो सकता है कि छोटे छोटे बहुत प्लेयर्स हों हर जगह पर, बट कोई भी नीश में यूनिकॉर्न नहीं बना पाया. कोई अगर 93 से एक कंपनी पे काम कर रहा है और वो आज तक यूनिकॉर्न नहीं बना पाया, तो मतलब हो सकता है ये मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, हो सकता है इसकी अप्रोच इतनी ठीक नहीं है. तो बहुत सारे इसके अंदर ना, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें बहुत सारे assumptions हैं. ये इंडस्ट्री ऐसी है, इसमें बहुत सारे हो सकता है. तो वो हो सकता है के बेसिस पे डिसीजंस लेना तो ऑलवेज रिस्की है ही है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट रिस्कीएस्ट एसेट क्लास.
Thanks for coming, Neha. Thank It you. was a Thank you great so conversation much. and a real one with you. I really enjoyed and learned a lot from you. Thank you so Thank you. much. Thank you so much. Yeah.